और मेरे चैनल का नाम है एवरीथिंग आरित। आज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और बीच में जो बगल में नोटिफिकेशन की घंटी होती है वो भी बजा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। आज मैं कोई गाना नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 1 साल के बाद 1 साल 17 दिन मैंने गिन के रखा था, उसके बाद मैं क्रिकेट का वीडियो डाल रहा हूँ। आप इसको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरे आइडल के ऊपर है, वो खिलाड़ी के ऊपर है जिसने 3 आईसीसी ट्रॉफी जिताई है भारत को, जो भारत को बहुत ऊंचाइयों पर लेके गया। नाम है उस खिलाड़ी का महेंद्र सिंह धोनी। आज मैं वर्ल्ड कप शॉट की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही वो 2007 का आखिरी फाइनल ओवर। मैं उस वाकया की बात कर रहा हूँ जिसको स्पिरिट ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया था। तो एज पर द क्रिकेट रूल्स ऐसा माना गया है कि अगर अंपायर आउट देता है और अगर कैप्टन को लगता है कि वो कोई गलत तरीके से आउट दिया गया है, तो वो कैप्टन आउट का डिसीजन वापस ले सकता है। इसलिए इंग्लैंड में तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में 2011 को एक टेस्ट मैच चल रहा था। उसकी सेशन की आखिरी गेंद पर इयान बेल और इयान बेल इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो 100 के ऊपर खेल रहे थे, साथ में थे इंग्लैंड के T20 और ओडीआई के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन, जो कि टेस्ट खेल रहे थे। आखिरी गेंद पर इयान मॉर्गन ने शॉट मारा और वो जाके बाउंड्री रोप के पास जो है प्रवीण कुमार ने डाइव लगाई थी, और वो बॉल जाके बाउंड्री रोप से थोड़ी पहले रुक गई थी। अब वो प्रवीण कुमार ने बॉल जो थी वो पहले रुक गई थी, उसको फिर फेंका वहां पर, कीपर ने ऐसे बेल्स निकाल दी। इयान बेल और मॉर्गन को लगा कि वो चौका हो गया, तो वो चलने लगे। फिर अंपायर ने देखा कि बॉल तो वहां रुक गई थी, अब वो देख के उन्होंने डिसीजन दे दिया आउट। धोनी को लगा कि एक गलत डिसीजन दिया गया, तो उन्होंने क्या किया, सेशन जब एक और सेशन होने वाला था, उसमें इयान बेल रन आउट हुए थे, तो उनको उन्होंने वापस ले लिया। एज पर द क्रिकेट रूल जो मैंने आपको बताया था कि अगर अंपायर आउट देता है और कैप्टन को लगता है कि वो गलत डिसीजन है, तो वो उस डिसीजन को वापस ले सकता है। और वैसा ही किया कप्तान धोनी ने। आइए देखते हैं वो चित्र कैसे थे। England batsman Ian Morgan hits the ball towards square leg boundary, and Praveen Kumar dives and stops the ball from going to boundary. But he was unsure if the ball had crossed the boundary or not. Hence, he throws the ball towards the striker's end. But both the batsmen assumed that it's a boundary and got together to move towards the dressing room, as it was the last ball before the tea interval. Point to be noted here is neither the umpire has signalled boundary nor he called for tea. Umpires usually take the bails off from the stumps and calls tea before going to the tea interval. Ian Morgan and Ian Bell just assumed everything and they stopped in between. Looking at the batsman outside the crease, a fielder of Indian team puts down the bails and appeals for run out. After referring to the third umpire, it was clear that the ball had not crossed the boundary and the ball was still in play. So, the third umpire ruled Ian Bell run out. This sparked the controversy and many people thought this was not within the spirit of the game. Others had stopped because Praveen Kumar's action suggested that it was a boundary. Also, it was last ball before the tea and Ian Bell thought that the tea time has been called. There were too many confusions. Of course, it was a mistake from him and he was out according to the laws, but spirit of the game was in question. Both the teams went for tea interval after the incident. When they came back from tea, what happened was something redefined the spirit of the game. During the tea interval, England captain Andrew Strauss and the coach Andy Flower approached the Indian captain MS Dhoni and asked him to reconsider his appeal. After talking to every member of the team, Dhoni decided to withdraw the appeal. Ian Bell, who was out lawfully, was given a reprieve. Crowd who were booing when Indian team came out to field initially started applauding after realizing that Ian Bell is coming out to bat again. Accounts had gone for the tea interval.
In the era of teams wanting to win at any cost, cricket witnessed the spirit of the game being upheld at the highest level. मजा आया ना दोस्तों? ऐसी थी कुछ स्पिरिट ऑफ द डिकेड की कहानी। इयान बेल जो बहुत नाराज हो गए थे, उनको धोनी ने खुश किया, वो डिसीजन वापस ले गए कि इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद आप गलत तरीके से आउट हो, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा कि धोनी ने सिर्फ 2011 का वर्ल्ड कप को शॉट मार के ही नहीं जिताया इंडिया को, बल्कि ये सब मोमेंट्स देके भी इंडिया के लिए अपना दिल भी जीता। इसलिए कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी द ग्रेट। थैंक यू।